So, hello and hi everyone. Welcome back to my channel. And I, Simran Priya, welcome you all. Today's session is on what? Today's session is on ICSE. We are discussing ICSE curriculum, and this is a session on history class 8. Yes. So, what we will be discussing in today's session? आज हम लोग discuss कर रहे हैं history class 8 का from ICSE board syllabus, and this is me Simran Priya, as you know. Now what is our chapter about? Our chapter is the very first chapter from history, a period of transition, and this is the B part. That means I have already uploaded bacha the A part of this particular chapter. मैंने इस chapter का A part upload कर दिया है. Go watch the A part so that you have a better understanding and a clearer concept of this particular chapter. Now, in this chapter, we have discussed Renaissance, we have discussed reformations. Now we will be doing voyages of discovery. What will be the contents that we will be doing today? This will be the university. I welcome you all to my platform, which is an extension of my NGO, where what I do, I promote education. I want to make this education that is a basic human right that must reach to every nooks and corners of this country, right? तो चलिए अपना segment शुरू करते हैं, and the very first topic, as you can see, is the voyages of discovery. So we will be doing the voyages of discovery. Moving on. Now moving on, let's start this segment. Okay, now during the early 15th century, am I audible and visible to every one of you? Can you please tell me that am I audible and visible to everyone? You please write in the comment box so that I know that yes, I am audible and visible to you people, right? Now, during the early 15th century में क्या होता है? Most of the trade routes, जो ज़्यादातर trade routes थे, किसके बीच में? Yes, thank you Saitras, thank you Ajay Kumar, thank you so much and welcome to my session. Now, during early 15th century, most important trades जो थे, that was happening between Europe and Asia. ठीक है, अर्ली 15th सेंचुरी में जो ज्यादातर ट्रेड्स थे यूरोप और एशिया के बीच में होने वाला जो ज्यादातर ट्रेड था वो ओवरलैंड ट्रेड था. व्हाट डू वी मीन बाय ओवरलैंड ट्रेड? ओवरलैंड ट्रेड मींस जो रोड के रास्ते या लैंड के रास्ते जो ट्रेड हो रहा है उसको बोलते हैं ओवरलैंड ट्रेड. अंडरस्टूड. सो इस टाइम पर ज्यादातर ट्रेड्स यूरोप और एशिया के बीच में द ट्रेड वाज हैपनिंग थ्रू रोड्स, ठीक है, थ्रू लैंड. सो दिस वाज नोन एज एन ओवरलैंड रूट. ओके, नाउ दिस पास्ड थ्रू द वेस्टर्न एशिया, और ये जो रूट था यूरोप से एशिया जाने का ये लैंड के थ्रू था और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया से, दैट इज रशिया होते हुए ये रूट आता था. ओके, लेकिन ट्रेड विद एशिया, एज यू नो दैट एवरीवन वांटेड टू ट्रेड विद एशिया, इसीलिए तो हम लोगों भी कॉलोनाइज हुए थे, बिकॉज ट्रेड विद एशिया वाज हाईली प्रॉफिटेबल. ये क्या था? बहुत ज्यादा प्रॉफिट का था यहाँ से ट्रेड करना. यहाँ पर इतने रॉ मटेरियल्स थे एशिया में कि उससे ट्रेड करना वाज हाईली प्रॉफिटेबल एंड इट वाज एक्सट्रीमली, एंड सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस. सो यूरोपियंस के लिए ये ट्रेड करना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Understood? Now, the Indian spices to preserved meat. In what things they did trade? उन लोगों ने बहुत चीजों में ट्रेड किया. They did trade in many things, especially the Indian spices. जो इंडियन स्पाइसेस थे उसमें इन्होंने व्यापार किया. In order to preserve their meats, they wanted the Indian spices and also textile, that is cotton, clothes बनाने के लिए, टेक्सटाइल के लिए. This trade became very popular. This trade items became very popular. Now you have understood कि 15th century में क्या था? एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड थी वो ओवरलैंड ट्रेड थी.
है ना, जो वेस्टर्न एशिया से थ्रू पास करती थी। ये ट्रेड जो थी वो बहुत ही प्रॉफिटेबल थी, इसलिए यूरोपियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। इस ट्रेड में वो लोग क्या चीज में व्यापार कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स में भी कर रहे हैं। दीज वर सम ऑफ द हाईली डिमांडेड गुड्स। ओके, now after Constantinople conquered by Ottoman Turks, now Constantinople, यूरोप और एशिया का बीच जो ये लैंड से ट्रेड हो रहा था, उसमें बीच में एक जगह वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, नाउ this particular Constantinople was under the Roman Empire, and then it was under this Constantine रूलर के एम्पायर के अंदर में था, लेकिन इसको बाद में जाकर टर्क्स अपने अंडर में ले लेते हैं। जब when the Constantinople was conquered and captured by the Ottoman Turks, जब कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन टर्क्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, the overland routes no longer available for trade. So यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा जगह था, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह था। ओके, इसको किसने कैप्चर कर लिया, इट वॉज कैप्चर्ड बाय द टर्क्स। जैसे ही टर्क्स ने ये बीच वाली जगह को कैप्चर कर लिया, दे ब्रोक द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया के बीच में जो ओवरलैंड लैंड के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था, दैट वाज ब्रोकन। ओके, सो वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। Understood? Now moving on, the Turks blocked the trade routes to Asia. कैसे खत्म हो गया, क्योंकि टर्क्स ने क्या किया, टर्क्स ने इसे ब्लॉक कर दिया। जो ट्रेड रूट था उसे टर्क्स ने क्या किया, दे ब्लॉक्ड द ट्रेड रूट टू एशिया। Understood everyone? Please call all your friends, all your classmates and ask them to join as quickly as possible so that they would have a better understanding of this chapter, as this chapter is very important for you people. So आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों को, सब लोगों को अपने बुलाओ और इसमें ज्वाइन कराओ। Okay, ask all your friends to join in as quickly as possible. Now moving ahead, let me see। अब क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर हो गया, तो इसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच में ओवरलैंड ट्रेड खत्म हो गया, क्योंकि टर्क्स ने ब्लॉक कर दिया बीच का रास्ता। ओके, नाउ द यूरोपियंस स्टिल वांटेड टू ट्रेड विद एशिया, लेकिन यूरोपियंस अभी भी एशिया से ट्रेड करना चाहते थे। सो अ न्यू रूट्स टू एशिया हैड टू बी डिस्कवर्ड, क्योंकि एशिया से व्यापार करना वाज ऑफ हाई प्रॉफिट का व्यापार था। यस, एशिया से ट्रेड करना was of high profit, and so they wanted to discover new routes to Asia ताकि उनका ट्रेड रुके ना। Understood everyone? Now this led to a race among the European countries. इसके वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज अपने में ही रेस में लग गई। पूरी यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन आता है, Spain, Portugal, Germany, France, Britain, they all engaged in finding out new routes of trade. Understood? So what they did to find new routes of trade, many European rulers also financed expedition. अब आप समझो, कॉन्स्टेंटिनोपल टर्क्स के हाथ में चला गया। कॉन्स्टेंटिनोपल किसके हाथ में चला गया, टर्क्स के हाथ में, जिसके वजह से उनका ओवरलैंड ट्रेड क्या हो गया, खत्म हो गया। अंडरस्टूड, खत्म हो गया। अब इन्हें लेकिन ट्रेड तो करना है, सो दे वांटेड टू डिस्कवर न्यू रूट्स टू एशिया। और इस नए रूट्स को फाइंड करने में पूरी यूरोपियन कंट्रीज लग गई। This led into a mad race, right? And now many European rulers ने भी क्या किया, इस ट्रेड के एक्सपीडिशंस को क्या किया, फाइनेंस किया, उसमें पैसे लगाए।
अंडरस्टूड. नाउ टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स टू द ईस्ट, किस लिए उन्होंने पैसे लगाए? ताकि वो नए ट्रेड रूट्स ईस्ट की तरफ ढूंढ पाए. मूविंग अहेड, ट्रेमेंडस ग्रोथ इन ज्योग्राफिकल नॉलेज. ना इस टाइम पर ना केवल उनको नए ट्रेड रूट्स ढूंढने थे, नए ट्रेड रूट्स तो न्यू ट्रेड रूट्स उन्हें ढूंढने ही थे, न्यू रूट्स तो उन्हें ढूंढने ही थे, लेकिन इसके साथ साथ इसी टाइम पर ज्योग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ने लगी. आई वुड लाइक टू से हाई, गुड इवनिंग ड्रीम गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. प्लीज कॉल ऑल योर फ्रेंड्स, your classmates to join as quickly as possible as we are discussing the chapter number 8 of history, the class 8, and call all your friends ताकि they will be also benefited from the live session. And you can go ahead and ask me anything, any question in the chat box, and any suggestion you want to drop or anything you want to say, you can always go to the chat box and you can write it. Okay, now इस टाइम पर देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ज्योग्राफिकल नॉलेज में. पहला, ज्योग्राफिकल नॉलेज में बहुत ग्रोथ होने लगी. दूसरा, इन्वेंशंस होने लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसने क्या किया? दैट फ्लिप टू द एक्सप्लोरेशन, दैट गेव इम्पेटस, जिसने एक्सप्लोर करने की चाहत को और बढ़ा दिया, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉलेज ज्यादा बढ़ गई है, ज्योग्राफी के बारे में लोग ज्यादा जानने लगे कि कहां पर कौन सा सी है, कहां पर कौन सा लैंड है, और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं. नाउ नाउ इम्प्रूव्ड. Yes, Bacha, it is on page number, I would say, it is on page number 6, Voyages of Discovery. You can find out the page number 6, Voyages of Discovery. Okay. Now, moving ahead, the improved maps. Now, geography का knowledge उन लोगों को बढ़ रहा है, तो वो लोग मैप भी क्या कर रहे हैं? सही सही बना रहे हैं. Now, you might be wondering कि पहले उन लोगों का मानना था कि अर्थ क्या है? फ्लैट है. फिर धीरे धीरे उन्होंने जाना कि नहीं, अर्थ तो गोल है. सो ये चीज उन्होंने कैसे जानी? थ्रू दीज एक्सप्लोरेशंस, राइट? So improved maps and the instruments like quadrant, astrolabes, mariner compass made sailing at safer sea. ये सारी चीजों ने क्या कर दिया? ये सारी चीजों ने इन सीज में सेल करना सेफ बना दिया. Okay, what is a quadrant? Quadrant is an instrument. ये क्या है? एक instrument है that helps to check one's location. That helps to check करने के लिए help करता है, helps to check one's location. अपनी location को check करने में या फिर अपनी position को sea में check करने में help करता है quadrant. Understood. What is an astrolabe? Astrolabe is also same as quadrant. ये दोनों चीजें क्या करती हैं? Help करती है to check the location in sea. Now, what is a compass? Compass क्या होता है? Compass is an instrument with a dial. एक डायल रहता है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक डायल बना हुआ है एंड उसमें एक मैग्नेटिक नीडल है, दैट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है. सो अगर हम सेलर हैं और हम शिप पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वो क्वाड्रेंट को ऐसे रखेंगे, तो जिधर भी इसका अगर क्वाड्रेंट इसमें कॉम्पस में इट इज शोइंग इस तरफ, ऐसा करके इसका कॉम्पस दिखाने लगेगा, इसका मतलब इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ फिर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, इस तरफ ईस्ट है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ दिस कॉम्पस वर्क. नाउ दिस मेड सेलिंग अ सी सेफर, एट सी सेफर, राइट? सो अब सी में जाना और सेफ हो गया जब लोगों को अपने लोकेशन के बारे में पता रहने लगा. दे वर यूजिंग these instruments to find direction. Compass help us in finding direction and astrobes and quadrant help us in finding location. ठीक है, सो ये जब उन्हें लोकेशन और डायरेक्शन पता होने लगा, सो दिस हेल्प देम हैव अ बेटर सेल, अ सेफर सेल इन सी. Okay, moving ahead. Now this is very interesting. Now, invention of gun and gunpowder.
इसके साथ साथ क्या हो रहा था, गन और गन पाउडर का इन्वेंशन जो हुआ, दैट हेल्प safeguard ships from the attacks of the sea pirates. So the sea pirates or the sea luteiras we can say, so वो लोग क्या करते थे, उनसे बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, उन्होंने गन का इन्वेंशन और गन पाउडर का इन्वेंशन हेल्प देम, ताकि वो लोग उनसे अपने आप को बचा पाए. Understood? Now, thus new sea routes and new lands were discovered by sailors and explorers. So, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे inventions के वजह से, geographical discoveries के वजह से, we can know that now new lands were being founded out. Now, new lands were discovered by the sailors and explorers. For example, in 1488 में Bartholomew Diaz. Now, this Diaz person, Bartholomew Diaz ने क्या किया? He reached the southernmost tip. अब क्या, कहाँ से ये लोग निकल रहे हैं? ये लोग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर this is Europe, right? सो ये लोग कहां से निकल रहे हैं, ये यहाँ पर यूरोप है. सो ये लोग यूरोप से निकल के, यूरोप के लिप्सन से निकल के, ये इस तरीके से सेल करता हुआ ऐसे ऐसे आता हुआ ये लास्ट में कहां पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है. एंड ही कॉल्ड दिस प्लेस एज केप ऑफ गुड होप. और उसने इस जगह को, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका को क्या कहा, उसने अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप को कहा केप ऑफ गुड होप. And who was this person? This person was Bartholomew Diaz. Okay, moving ahead, Vasco da Gama. You all have heard of Vasco da Gama, right? Vasco da Gama ने भी same route follow किया. वो भी यूरोप से निकले, लिप्सन से ही वो भी निकले. अंडरस्टूड? जैसे कि पहले बार्थोलोमियो डियाज ने वहां से निकला था, वैसे ये भी निकले. नाउ ही स्टार्टेड हिज सेलिंग इन 1497 और उन्होंने वहां पर जुलाई में वहां से निकले. देन ही वेंट एंड ही रीच्ड इंडिया इन 1498 और यहां से होते हुए केप ऑफ गुड को होते हुए वो कहां पहुंच गए, इंडिया के शोर पे पहुंच गए 1498 में. एज यू कैन सी, राइट, 1498 में वो इंडिया पहुंच गए. And this is Vasco da Gama, and this is how he discovered India. Okay, now he discovered the route to India. Now Christopher Columbus, this person, he set out to discover sea routes to Asia. और वो भी ये भी क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से निकले, यूरोप से निकले. इनको एशिया का सी रूट ढूंढना था, लेकिन ये अपनी जहाज, अब हम पानी में जब निकलते हैं हमें नहीं पता कि बहाव हमें कहाँ ले जा रही है, राइट. सो इन्होंने क्या किया, ये इस तरफ चले गए. 1902 से 93 में ये इस तरफ गए, 93 से 96 में भी वो जब निकले तो इसी तरफ गए, और 50 से आप देखो हर बार 4 बार ही ट्राइड एंड ही went on in the same direction यहाँ पर, and he founded Americas, the northern and the southern Americas. He found it out. He discovered the sea route to Americas. Right. Moving ahead, in the Amerigo Vespucci. Okay, now the fourth person was Amerigo Vespucci. Now he reached America too. He also, इन्होंने भी लिस्बन से एक बार और दूसरा बार कैडिक्स से इन्होंने शुरू किया, और ये कैसे ऐसा करके he reached America. दोनों बार, पहली बार में ये कैडिक्स से जब वो गए और फिर से वो वहीं पहुंच गए, लेकिन दूसरी बार में जब वो लिप्सन से निकलते हैं तो वो यहाँ पहुंचते हैं साउथ अमेरिका में, and he discovered the sea route to America. Moving ahead, we had the last person, Ferdinand Magellan, जो एक पोर्टुगीज सेलर था, जो एक कहाँ का सेलर था, यूरोप से ये भी निकला, पोर्टुगीज सेलर था. ना ये अपने यहाँ से स्पेन से ये निकलते हैं, ठीक है, लेकिन he was the first sailor to go round the world. Now he went here, यहाँ इस तरफ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर ये ऊपर होते हुए इधर से फिर ये ऐसे करके ये लौटते हैं. So he was the first sailor who went round the globe, who went round the world, and he proved that the earth is not
flat, bulky, it is round. Okay, you have heard of Ferdinand Magellan. Now, comes why England? Why Industrial Revolution came in England first? Now, let's first understand what Industrial Revolution is. पहले ये समझते हैं कि what is Industrial Revolution, and then we will do कि why in England. Now, an ever increasing volume of trade meant that more goods had been produced in shorter time. So, इस टाइम पे क्या था कि shorter time में वो लोग क्या कर रहे थे, शॉर्टर टाइम में मोर गुड्स प्रोड्यूस करना था उन्हें, मोर गुड्स वो प्रोड्यूस करना चाहते थे शॉर्टर टाइम में. ठीक है. नाउ द पहले का सिस्टम, देयर वाज अ सिस्टम ऑफ, आई वुड लाइक टू से हाय टू विनीता तिवारी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय सेशन. राइट नाउ, पहले के सेशन, पहले क्या होता था, पहले अर्लियर देयर वाज डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जहां पर घर के ही लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था. which had artisans collected raw materials from the merchants. जो क्या करते थे, artisans raw materials collect करते थे merchant से, and made goods, अपने हाथ से ही वो लोग, अपने हाथ से ही रॉ मटेरियल कलेक्ट करके बेयर हैंड से वो लोग गुड्स बनाते थे अपने फैमिली के लोगों को यूज करके. लेकिन इसके बाद द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. क्या आ गया, फैक्ट्री सिस्टम आ गया, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ गया. इसमें क्या हो रहा है, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में द मशीनरीज, रिच 18th सेंचुरी में ये आता है. इस टाइम पे क्या हो रहा है, रिच मर्चेंट्स ने इंडस्ट्रीज बैठाई, अंडरस्टूड, और उन्होंने एम्प्लॉय किया वर्कर्स को. उन्होंने क्या बैठाया, इंडस्ट्रीज बैठाई, और उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉय किया वर्कर्स को, और उन्हें बेच दिया, तनख्वाह दी उनकी डेली बेसिस पे. ठीक है. नाउ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केम इन. ठीक है, जिसमें क्या था, पहले हाथ से चीजें बना रही थी घर में 4-5 लोगों को यूज करके. नाउ अब एक इंडस्ट्री बैठ गई है, मशीन बैठ गया है, और उसमें वर्कर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं लार्ज नंबर पे, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है. नाउ ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया. ठीक है. नाउ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी. ये कब इंग्लैंड में आया, मिड 18th सेंचुरी में इट केम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड का एडवांटेजियस पोजीशन टू स्टार्ट एंड सस्टेन एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड एक एडवांटेजियस पोजीशन पे था टू स्टार्ट एंड सस्टेन एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जहां पर वो स्टार्ट कर सकता था और सस्टेन कर सकता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को. Okay, now abundant supply of natural resources, especially coal and iron. पहला reason why England is, क्योंकि इनके पास क्या है, abundant supply है natural resources का. Understand this, what they have abundant supply of natural resources. What they have abundant supply of natural resources. Especially किसका उनके पास सप्लाई बहुत ज्यादा है, स्पेशली उनके पास सप्लाई है कोल एंड आयरन का. और कोल एंड आयरन ही इस्तेमाल होगा ना एक इंडस्ट्री को बैठाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीन को कोल, और इसकी मशीन बनाने के लिए आयरन. सो दिस वाज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो पहली चीज क्लियर है कि अबंडेंट सप्लाई है नेचुरल गैस रिसोर्सेस का. सेकेंड वाज स्टेबल गवर्नमेंट. यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है. विच encourage ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसने क्या किया, जिसने इस टाइम के ट्रेड और कॉमर्स को इनकरेज किया.
ठीक है। इस गवर्नमेंट ने ही इनकरेज किया, उन्होंने बोला लोगों को कि और ट्रेड करो और कॉमर्स करो। दस ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट गिवन द लिबर्टी टू ट्रेड इन वॉट एवर फील्ड दे लाइक। सो ब्रिटिश के ट्रेडर्स को ये फ्रीडम था, ये लिबर्टी थी कि वो जिस भी फील्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, दे कैन गो अहेड एंड डू ट्रेड्स। Right. Moving ahead, the abolition of the serfdom. तीसरा important point is जब abolition मतलब होता है removal or the complete removal of what? Serfdom. Serfdom क्या होता है बच्चा? Serfdom एक condition है जिसमें जिसमें क्या होता है, किसी के हम अधीन रहते हैं, किसी के हम गुलाम रहते हैं। सो दैट इज अ कंडीशन जब हम किसी के गुलाम रहते हैं। सो अ कंडीशन ऑफ बॉन्डेज where peasants were forced to work and live on land that belonged to the landowners whom they had to obey. So जो land owners के, अगर land owners हैं जिसका लैंड है, वो अपने लैंड पे किससे काम करा रहे हैं? पीजेंट से काम करा रहे हैं, और वो उन्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दैट्स अ सिस्टम ऑफ सर्वडम, ठीक है, गुलामी। सो अब इस टाइम पर अबॉलिशन हो गया सर्वडम का 18th सेंचुरी में, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या हो गए? फ्री हो गए। अब अगर बहुत ज्यादा लोग फ्री हो गए तो दे मूव्ड टू द सिटीज फॉर वर्क। व्हाट दे डिड, दे मूव्ड टू द सिटीज फॉर वर्क एंड दस अब ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री हो चुके हैं, ये ज्यादा लोग सब सिटीज में चले गए, इसका मतलब ज्यादा लोग वहां अवेलेबल हो गए। देयरफॉर द लेबर वाज cheap. Now there was a cheap availability of labor, it was easily available. Understood? Now the fourth important point is British government with strong navy. ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही मजबूत नेवी थी, जिसके वजह से उन्होंने पॉलिसी फॉलो की, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की। वो अपने आप को, अपने पावर को ब्रिटेन से बाहर ले जाकर एक्सपैंड कर रहे थे, जैसे कि वो इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाते हैं, चाइना में एंड ऑल अदर प्लेसेस, राइट। सो दे वर टेकिंग अप द पॉलिसी ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। This led to rapid colonization, और इसके वजह से क्या हो गया? इसके वजह से रैपिड कॉलोनाइजेशन होता है, कॉलोनीज बनने लगते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कॉलोनाइजेशन? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनीज इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कॉलोनी, अपने अधीन कॉलोनी बना लेना। जैसे कि ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी? उसने, ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली थी। सो दैट इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। अंडरस्टूड? नाउ दिस इनेबल्ड ब्रिटेन, अब ब्रिटेन वहां से निकलकर अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी लेकर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा है, और वो अपने अलग अलग जाके कॉलोनीज बना रहा है। इसके वजह से व्हाट हैपेंड कि ब्रिटेन को बहुत चीपली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स मिलने लगे, जो जहां पे भी वो कॉलोनी बनाएगा वहां से रॉ मटेरियल उठा के ले जाएगा। सो दे गॉट चीपली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स, और उसे अपने बनाए हुए गुड्स को, रॉ मटेरियल वहां से लेकर जाएगा ब्रिटेन में उसको इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करेगा, उसको बनाएगा, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल फिनिश गुड्स जो होंगे उसको सेंड बैक कर देगा। Understood? So what they will do, this enabled them to get cheap raw material and market for the British finished goods. ठीक है? Now the last point is, इस time पर there was an atmosphere, there was a condition of scientific inquiry, जहां पर क्या हो रही है? scientific inquiry की जा रही है, and improve transports, और क्या किया जा रहा है? improve transports किया जा रहा है। So या इस टाइम पर बहुत सारे साइंसेस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि thank you so much LW Soul YT. Thank you so much for joining in. Okay. Okay, so I will do once again. That is the scientific inquiry.
द साइंटिफिक इंक्वायरी जो इस टाइम पे क्या हो रहा है ब्रिटेन में कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंक्वायरीज हो रही हैं, लोग नए नए चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं, नई नई मशीनरीज बन रही हैं. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन देयर वाज अ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. And what was that? Improved transport system in forms of canals and road. कैनल और रोड के फॉर्म में ये था. और इसने क्या किया? इट हेल्प्ड इंग्लैंड टू बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. सो इन सारी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि वो जाके एक्सप्लोर करे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पर कॉलोनीज बनाई, वहां पर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल था. सो बिकॉज ऑफ these reasons they became the first industrialized nation. पूरे विश्व का पहला इंडस्ट्रियलाइज जहां पर इंडस्ट्री आई और सेटल हुई. सो दैट वाज ब्रिटेन एंड इट बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. Okay, now what were the major inventions that take place during this time? Now first, पहला जो सबसे, अब आपको ये जानना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस, कि सबसे पहले जहां मशीनरीज इंट्रोड्यूस की गई, मैकेनाइज्ड मतलब टू इंट्रोड्यूस मशीनरीज. So the first place where the machineries were introduced were कहां पर? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मशीनरीज लाई गई. जैसे कि जेम्स हार्ग्रीव ने स्पिनिंग जेनी बनाई, रिचर्ड आर्विट्स वाटर फ्रेम बनाते हैं, सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल्स बनाते हैं, एडमंड कार्टराइट पावर लूम बनाते हैं, जॉन के फ्लाइंग शटल बनाते हैं. सो दीज वर द 5 मेजर डिस्कवरीज फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द इन्वेंशंस of the textile industries. Now this increased the production of cloth. और इसके वजह से what happened कि इस टाइम पर क्लोथ का प्रोडक्शन, क्योंकि मशीनरीज आ गई है, ज्यादा क्लोथ बन रहे हैं, सो इस टाइम पे क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. Okay, now Lancashire and Yorkshire, two places in Britain. तो ये दोनों जगह, this emerged two main centers of textile industries. और ये जो Lancashire और Yorkshire में ये जो दो जगह है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज, ये दो मेन सेंटर्स बन जाता है जहां पर इंडस्ट्रीज बिठाई गई. Okay. Okay. Now all these, now I would say spinning jenny बच्चा, वाटर फ्रेम, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, ये सारी चीजें स्पिनिंग के लिए यूज कर रही जा रही थी, स्पिनिंग और वीविंग के लिए. ठीक है, आप लोग अब समझो कि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक चीज क्या कर रही थी, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा था. जैसे कि पहले उन्होंने मशीन बनाई तो एक ही थ्रेड से काम हो रहा है, लेकिन अभी आप लोग जानते हो कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें 2 थ्रेड, एक सिल्क का धागा, एक कॉटन का धागा लगा सकते हैं, एक नायलॉन का धागा, एक सिल्क का धागा लगा सकते हैं, राइट. सो ये जो दो थ्रेड्स को मिलाना, 3 थ्रेड्स को मिलाना या थ्रेड्स को मजबूत बनाना, ये सारी चीजें किसके द्वारा की जा रही थी? स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, स्पिनिंग म्यूल्स, पावर लूम एंड द फ्लाइंग शटल. ओके. Moving ahead, improved steam engine. Now, James Watt, this person, he introduced improved steam engine. Now, पहली चीजें क्या हुई? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इन्वेंशंस में. दूसरी चीजें क्या हुई कि एक इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन आ गया. ठीक है, जिसे जेम्स वॉट लाते हैं, जिसने रिप्लेस कर दिया वाटर एंड हॉर्स पावर इन मेनी इंडस्ट्रीज. जहां पर वाटर पावर यूज किया जा रहा था, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा था, और दूसरा वो हॉर्स पावर, जहां से हॉर्स पावर से इंडस्ट्री चलाई जा रही थी, वहीं पर स्टीम इंजन के आने से स्टीम से इंडस्ट्रीज चला, स्टीम का पावर यूज किया जाने लगा, एंड दैट वाज अ मेजर डिस्कवरी. नाउ जॉर्ज स्टीफनसन, उन्होंने स्टीम से ही लेकर आते हैं स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव. लोकोमोटिव क्या है? लोकोमोटिव what is locomotive? Locomotion करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. Locomotive is a machinery or you can say a vehicle that moves from one place to another.
ओके, सो दैट इज अ मशीन, दैट इज अ थिंग जो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. अंडरस्टूड. Understood. Now this helped in doing what? This helped in that helped the transport of the raw material from one place to another. और इसने क्या किया, इसने ट्रांसपोर्ट किया रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह. ओके, आई वुड, आप लोगों को बच्चा वाटर फ्रेम का आपको जानना है कि वाटर फ्रेम क्या करती है. इट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉटन थ्रेड. कॉटन, आपको पता है ना, यार्न से थ्रेड बनता है, कॉटन बॉल से यार्न और फिर थ्रेड बनता है. सो इट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, दिस वाज यूज्ड टू मेक कॉटन थ्रेड. कॉटन थ्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. आई होप इट इज क्लियर टू LW Som YT and the question it asked by Sujit Gupta. I hope it is clear and thank you so much. Thank you so much Sheikh Zawad for joining in. Good evening, sir. Now moving ahead. Inventions like seed drills and horse hose. What are seed drills? ड्रिल जैसे ड्रिल काम करते हैं ना, उसी तरह वो क्या करता था, एक मशीन था दैट वाज यूज्ड, जिसके थ्रू हम सीड्स को अंदर ले जा सकते हैं. ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सीड को प्लांट कर सकते हैं. अगर हमें सीड को ग्राउंड में प्लांट करना है सो उसे हम इजीली इसके थ्रू प्लांट कर सकते हैं, सीड ड्रिल्स के थ्रू. दिस वाज अ मशीन दैट वाज यूज्ड टू सो सीड डीप इनसाइड द अर्थ. नाउ सेकंड वाज हॉर्स हॉ. हॉर्स हॉ क्या है? हॉर्स हॉ इज अ मशीन जो हॉर्स के द्वारा चलाया जाता है और ये क्या करता है, दिस विल लूजन अप द सॉइल. लूजन अप द सॉइल, ये क्या करेगा, लूजन अप कर देगा सॉइल को एंड विल किल वीड्स. प्लस इसके साथ वो सारे वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स, व्हाट आर वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, उसको मार देता है. दैट ओके, सो उसको ये खत्म कर देता है. सो दिस लूजन्स अप द सॉइल एंड किल्स द वीड. नाउ द इन्वेंशंस लाइक सीड ड्रिल्स एंड हॉर्स होस इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. इसने क्या किया, इसने इम्प्रूव किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया. नाउ बेटर कोल माइनिंग टेक्निक्स. हम लोगों ने इसके पहले क्या किया बच्चा, हम लोगों ने क्या टेक्सटाइल कर लिया. ओके, हम लोगों ने जान लिया स्टीम इंजन कैसे डेवलप हुआ. ओके, देन वी अंडरस्टूड कि एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुई. एंड नाउ कम्स द एग्रीकल्चर के बाद, नाउ कम्स द कोल माइनिंग. कोल का डेवलपमेंट, कोल माइन का डेवलपमेंट होता है. ओके, सो कोल माइनिंग टेक्निक्स डेवलप की जाती है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रैपिडली स्प्रेड. Okay, so industrial revolution gradually spread across Europe and United States and Japan. So इसके थ्रू यह industrial revolution क्या हुआ, industrial revolution धीरे धीरे across Europe डेवलप होता है, स्प्रेड होने लगा. ब्रिटेन से ये शुरू होता है और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, यूरोप में, पूरे यूरोप में फैल गया. नाउ इट ऑल्सो वेंट टू US एंड जापान एक्सेट्रा अदर कंट्रीज. Okay, now the impacts. Now comes the impacts. कि क्या क्या impacts थे industrial revolution के. Now there were two major impacts बच्चा. Everyone listen. Two major impacts थे इस टाइम पे. Major impacts थे. पहला was the industrial revolution led a sweeping change. Impacts मतलब क्या, ये change लेकर आता है in Europe and elsewhere. सब जगह पर ये क्या लेकर आता है, rise of capitalism. बच्चा understand what is rise of capitalism. राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, जब जब देयर इज अ सिस्टम जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन किया जाता है एंड ऑपरेट्स फॉर प्रॉफिट, दैट इज कैपिटलिज्म.
सो इस टाइम पर क्या हो रहा था, इस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी उसने डिक्लाइन किया फ्यूडलिज्म को यूरोप में, और राइज ऑफ कैपिटलिज्म होता है और एक न्यू सिस्टम आती है दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म. दिस इज एन इकोनॉमिक पॉलिटिकल this is an economic and political system in which the property, business and industries are owned by private individuals. देखो सब लोग फोकस करो बच्चा, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं. डू नॉट engage in any absurd, do not engage with any shows. If a person is coming in and they want to speak like as a randomly, and they have enough knowledge and they do not want this session, so what you must do, you must not engage with them. Okay, it will, you are here to study, so study and just leave this platform. Let's be kind and let's be patient. We must not lose our temper. Okay, I will surely block this. Okay, okay, thank you, dream girls. Please do not engage with him or her, whatever that person is. Please, बच्चा आप अपना कामनेस मत खो, राइट. सो हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, है ना. सो नाउ लिसन कि क्या हो रहा था यहाँ पर. फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था. फ्यूडलिज्म में क्या था बच्चा, नाउ अंडरस्टैंड फ्यूडलिज्म एक ट्रायंगुलर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जहां पर पावर हायरार्की में डिवाइडेड है. जैसे कि सबसे ऊपर किंग होता है, ठीक है, उसके नीचे कौन होते हैं, नोबल्स होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं, नाइट्स होते हैं. अंडरस्टूड. एंड सबसे नीचे कौन आता है, सबसे नीचे कम्स द पीजेंट्स एंड स्लेव्स आते हैं. सो और ये ऐसे ही पावर भी डिवाइडेड होता है. सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, किंग के पास होती है. उसके बाद पावर्स होती है नोबल्स के पास, उससे कम पावर्स होती है नाइट के पास, और कुछ भी पावर्स नहीं होती है पीजेंट्स के पास. तो पहले का जो समाज था, द सोसाइटी was what was the society? The society was a feudal society. ठीक है, सोसाइटी कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी. लेकिन बाद में क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद इट इज देखिए फ्यूडल सोसाइटी कम हो जाती है और कैपिटलिज्म बढ़ जाता है. ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है, जब हर लोगों के पास, यहाँ पर लैंड किसके पास है, लैंड सिर्फ किंग के पास है, थोड़ा बहुत वो लैंड नोबल्स को दे देता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत वो लैंड नाइट्स को दे देता है. लेकिन कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, हर इंसान अगर ओन करना चाहता है सो वो अपना क्या कर सकता है, वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, वो ये सारी चीजों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो वो ये सारी चीजों को क्या कर सकता है, वो ओन कर सकता है एंड ऑपरेट फॉर प्रॉफिट, और उसके लिए प्रॉफिट के लिए काम कर सकता है. Understood? Moving ahead. Now new social classes emerged. The second thing was, पहला हम लोगों ने जान लिया rise of capitalism. So सेकेंड वॉज न्यू सोशल क्लास. न्यू सोशल क्लास इमर्ज होती है, जैसे कि कैपिटलिज्म गेव बर्थ टू टू न्यू सोशल क्लासेस. दो नए सोशल क्लासेस इमर्ज होते हैं. पहला कौन है, एवरीवन, पहला फोकस हियर. पहला इज द फैक्ट्री ओनर्स एंड द सेकेंड वुड बी वर्कर्स. दो सोशल क्लासेस आएंगी, पहला इज फैक्ट्री ओनर्स एंड सेकेंड इज वर्कर. ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स क्या करेंगे, दे एम्प्लॉय द वर्कर्स, वो अपने फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे एंड दे विल पे देम वेजेस, और उन्हें क्या देंगे, वो तनख्वाह देंगे, डेली बेसिस पे वो उन्हें वेजेस देंगे. ठीक है, उनके लेबर के लिए. नाउ द मेन एम ऑफ द फैक्ट्री वाज टू मेक प्रॉफिट. मेन एम क्या था, मेन एम क्या था, मेन एम इस पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर्स का था कि वो ज्यादा
से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. दे कंट्रोल्ड कैपिटल और मनी. और वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास कैपिटल था और वो मनी कंट्रोल कर रहे थे. एंड दैट्स व्हाई द फैक्ट्री ओनर्स, द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल्स आर नोन एज कैपिटलिस्ट. और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा. ओके, नाउ सेकंड हमारे कौन सोशल क्लास था, द वर्कर क्लास. नाउ हु वर्क्ड इन द फैक्ट्रीज, जो क्या कहां पर काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे. एंड दे रिसीव्ड वेजेस फॉर देयर लेबर, और अपने लेबर के लिए उन्हें वेजेस मिल रही थी. Okay, now they were exploited lot and lived a great hardship. अब ये लोग क्या थे, जो पहले लोग थे, जो फैक्ट्री ओनर्स होंगे, उनके पास क्या है, पैसा है, उनके पास कैपिटल है. सो फैक्ट्री ओनर्स बहुत लग्जरी में अपनी लाइफ जी रहे हैं. बट दीज पीपल, the workers were what, they were leading a life of exploitation and great hardship. Okay. Okay, now with this we have come to an end of our session. Thank you so much thank you so much every one of you who have joined the session and who are watching me. So thank you so much for being so kind and patient. You have listened to me so patiently and you have been so kind through the entire session. I would say let's make the what is our vision. Let's guide each other and make a better place to live. Now let's guide each other and make a better place. Make this a better world. So we are focusing on guiding each other. I am guiding you and I'm learning from you as well. As I can see people people like one of my students, like dream girl, one of my students, she showed her patience and she kept quiet to make this a better place, right? So guide each other to make this a better place, so to make this a better place to live. Okay, I would expect same from LW Soul YT. Now let's make a better place. You must have passed 12. Now this is just a learning phase. You're going to learn a lot. So thank you so much for coming to my session and thank you so much for joining in. I am really glad. I'm really proud of you people. And now I will come again with my